آپ کی شان شوکتوں سے الگ، دوسری سب نبوتوں سے الگ۔ قادیانیت کا فتنہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اصل میں تو یہ فتنہ ختم ہوا ہی نہیں تھا جب ان کو کافر قرار دیا گیا، اور وہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی تھی، لیکن اصل معاملہ اس دور میں بھی باقی رہا کہ ان خبیثوں کو جو مرتد ہو چکے تھے اسلام لانے کے بعد، پھر مرزا قادیانی کی نبوت کو مان کر مرتد ہو چکے تھے، حکومت وقت کو، مسلمان گورنمنٹ کو اس وقت ان کی گردنوں کو ان کے جسم سے جدا کرنا چاہیے تھا، اور مسلمان اسی بات پہ خوش ہو گئے کہ ہم نے ان کو کافر قرار دلوا دیا، اور ان کا فتنہ چلتا رہا۔ کفار کے چندوں پر پلنے والی، ان کے اشاروں پہ ناچنے والی، اسلام کے حلیے کو بگاڑنے کی کوشش کرنے والی یہ تحریک پس پردہ چلتی رہی اور اپنی جڑیں مضبوط کرتی رہی، اور آج اس مقام پر پہنچ چکی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتے ہیں، اور مسلمان ملکوں کے اندر فتنے اور فساد کی آگ کو برپا بھی کرتے ہیں۔ اور بہت سے نام نہاد اہل سنت مولویوں کو بھی انہوں نے اپنے ٹکڑوں پر پالا ہوا ہے، جو ان کے لیے ہمدردی کی فضا پیدا کرتے ہیں۔ ایک مرزا کہتا ہے کہ یہ اہل کتاب سے بہتر ہیں، اگرچہ کافر ہیں لیکن اہل کتاب سے بہتر ہیں۔ اب آپ لوگ خود مقدمہ سمجھتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں کہ ان کو اہل کتاب کی کیٹیگری میں ڈالنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور بلکہ آپ اس کے ساتھ بھی ایگری ہیں کہ اہل کتاب سے بہتر والی کیٹیگری میں، چونکہ قرآن اور نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور ایک اور کفر انہوں نے کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اہل کتاب سے بہتر نہیں ہو سکتے، یہ اہل کتاب سے بدتر ہیں۔ اور اگر آپ نے صحابہ کا منہج سمجھا ہوتا، ختم نبوت کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کو سمجھا ہوتا، تو پھر زبان سے یہ جملے نہ نکلتے کہ یہ ان کا بڑا ہے، مرزا غلام احمد مرزائیوں کا بڑا ہے، اس کا احترام کیا جائے، یہ لائق احترام نہیں، یہ ملعون شخص ہے، اس کی نبوت کو ماننے والے بھی ملعون ہیں، کفار کی ٹیم ہے، کفار کا ٹولہ ہے، اسلام کے یہود و نصارہ سے بڑے دشمن ہیں، کفار سے بڑے دشمن ہیں۔ تم نے ختم نبوت کی اہمیت کو نہ جانا۔ ختم نبوت کی اہمیت کو سمجھنا ہو تو سیرت ابوبکر صدیق کی طرف نظر دوڑانی پڑتی۔ اگر اس سیرت پہ تم نظر دوڑاتے، تمہیں ختم نبوت کی اہمیت کا علم ہوتا کہ ابوبکر صدیق آواز لگا رہے تھے، آج کوئی مدینے میں نہ رہے بلکہ قافلے نکلیں اس کذاب کے لیے، اس دجال کے لیے، مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے کے لیے، ختم نبوت کے منکرین کو قتل کرنے کے لیے ہر کوئی یمامہ کی طرف نکل جائے۔ مدینہ بھلے خالی ہوتا ہے ہو جائے، اگر کسی کو یہ خدشہ ہے کہ درندے مدینے میں داخل ہوں گے، اگر وہ مجھے گھسیٹتے بھی پھرے تو تب بھی مدینے سے نکلو، اور مسیلمہ کذاب کے قتل کے لیے، اس کے لشکر کے قتل کے لیے، ختم نبوت کے ڈاکووں کو مٹانے کے لیے سب کے سب یمامہ کا رخ کرو۔ یہ وہ سیرت تھی جس پر ابوبکر صدیق آنسوؤں سے بھیگی ہوئی آنکھیں، اور خود بھی تیار، اگر سیدنا علی منع نہ کرتے تو اللہ کی قسم ختم نبوت کے ڈاکووں سے قتال کرنے کے لیے ابوبکر صدیق میرے رسول کے ساتھ ہی، میرے پیارے حبیب کے سب سے افضل و اعلیٰ صحابی، خود تلوار لے کے یمامہ کی طرف نکلتے۔ یہ تو علی تھے جنہوں نے روکا تھا کہ آپ تو مدینے میں رکو، مسلمانوں کو اگر کوئی تکلیف پہنچی آپ بطور مرکز تو باقی رہو گے۔ ختم نبوت کو پہچاننا، ختم نبوت کی عزت کو جاننا، ختم نبوت کے موقع کو سمجھنا، اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے سلف کو دیکھنا پڑتا ہے، صحابہ کی سیرت کو دیکھنا پڑتا ہے۔ 13,000 کا لشکر بنو حنیفہ کے 70,000 جنگجو اسلحے سے لیس ہیں، مقابلہ بڑا شدت کا ہے، اور مسلمان پیارے نبی کے ختم نبوت کی اس عظیم عقیدے کے دفاع کے لیے کٹنے، لڑنے، مرنے کے لیے تیار ہے، اور لڑے، جنگ ہوئی،
भरपूर जंग हुई। कैसी जंग हुई, मंजर ये भी नजर आया, 1200 सहाबा की लाशें, उनके मुबारक जिस्म जख्मों से कटे फटे हुए वो मक्तल गाह में सजे हुए हैं। सूरज की किरणें उनके कदमों का बोसा ले रही हैं। किस लिए ये सहाबा की इतनी अजीम जमात, सहाबा का इतना बड़ा गिरोह शहीद हुआ? खत्म नबुव्वत की अहमियत को क़यामत तक आने वाली मुसलमान ज़ुर्रियत के दिलों में पेवस्ता करने के लिए सहाबा की इतनी बड़ी जमात ने कुर्बानियां पेश करके खत्म नबुव्वत के अकीदे का दिफा किया। मेरी कौम पर तुम खत्म नबुव्वत की अजमत को पहचान न सके, तुम उसकी अहमियत को जान न सके। ये अंसार के सरदार हैं, साबित बिन कैस हैं, अजीम बहादुर कमांडर हैं। इतनी इनकी बहादुरी के किस्से अरबों के अंदर मशहूर हैं। और ये अजीम सरदार अपनी जुबान से जुमला निकालते हैं मुर्तदीन को देखकर, उन मुजरिमों को देखकर जिन्होंने मुसलमा की नबुव्वत पर ईमान लेकर आए थे। कहा था उफ़िल लिहाउला वलिमा यअबुदून, तुफ है तुम्हारे ऊपर और जिनकी तुम पूजा करते हो उन पर भी तुफ है। तुमने मोहम्मद की नबुव्वत को छोड़कर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमा कज़्ज़ाब की नबुव्वत पर ईमान लेकर आए। तुफ है कादियानियों पर जो मोहम्मद की नबुव्वत को छोड़कर गुलाम अहमद मिर्जा कादियानी पर ईमान लेकर आए। मगर है मेरी कौम, तुम खत्म नबुव्वत की अजमत को पहचान ना सके। चश्मे फलक ने यह मंजर भी देखा, वो अकेला था, हजारों का लश्कर था और वो उसमें कूद गया था, घुस पड़ा था और हजारों से लड़ते हुए इस तरह शहीद हुआ था कि उसके जिस्म पर कोई ऐसा हिस्सा बाकी ना बचा था जिस पे तीर और तलवार के जख्म ना लगे हो। पर मेरी कौम, तुम खत्म नबुव्वत की अजमत को पहचान ना सके। वो उमर बिन खत्ताब का लाडला भाई था, ज़ैद बिन खत्ताब, जो ईमान लाने में सफ़े अव्वल में शामिल थे। वो अजीम कमांडर, वो अजीम मुजाहिद, वो अजीम सहाबी खत्म नबुव्वत के लिए किस तरह कुर्बानी देते हैं कि अपने मुसलमानों के सामने खड़े होकर आखिरी खिताब करते हुए कहते हैं वल्लाही ला अतकल्लमु हत्ता यहज़िमहुमुल्लाह, अल्लाह की कसम मैं उस वक्त तक किसी से कलाम नहीं करूंगा जब तक अल्लाह इन खत्म नबुव्वत के मुनकरों को शिकस्त न दे दे। अव्वल कल्लाह फउकल्लिमुहु बिहुज्जती, या फिर मैं अल्लाह के रास्ते में शहीद होकर अपने खून बहाकर अपनी कुर्बानियां देकर अल्लाह के सामने पेश हो जाऊं, या ये मुर्तदीन, ये खत्म नबुव्वत के मुनकर और डाकू कत्ल हो जाएं, ये शिकस्त खा जाएं, या मैं शहीद होकर अल्लाह के सामने पहुंच जाऊं। उस वक्त तक मैं कलाम नहीं करूंगा, मैं इस मिशन को जब तक पूरा ना कर लूं। पर मेरी कौम, तुम खत्म नबुव्वत की अजमत को पहचान ना सके। ये वही थे जिसकी शहादत ने मुराद रसूल को गमगीन किया था। सहाबा ने क्या कुर्बानियां दी खत्म नबुव्वत के अकीदे का दिफा करते हुए। प्यारे नबी के प्यारे सहाबा किस तरह अपनी जान को हथेली पर रखकर अल्लाह के सामने पेश हो गए, अपनी जान को कुर्बान कर डाला। यह हदीक़तुर रहमान है जिसे इतना खून बहा इस बाग के अंदर कि इसको हदीक़तुल मौत का नाम दिया गया। बनु हनीफा का यह बाग जिसकी दीवारें किसी कले की तरह बुलंद थी और ये कुफार इस बाग के अंदर बंद हो चुके थे। मुकाबला कैसा, चश्मे फलक ने ये क्या अजीब मंजर देखे। एक सहाबी है, बरा बिन मालिक नाम है, अपने सहाबा से, अपने साथियों से कहते हैं अब कोई हल तुम्हारे पास नहीं है सिवाय इसके कि मुझे उठाओ और उठाकर इस दीवार से मुझे इस बाग के अंदर फेंक दो। अल्लाह की कसम मैं अकेला लड़ता हुआ दरवाजे तक पहुंचूंगा और तुम्हारे लिए दरवाजा खुलवा दूंगा। दीवार पे चढ़े कुफार के, मुर्तदीन के, खत्म नबुव्वत के डाकुओं के ताहद नजर फैले हुए लश्कर को देखा और फिर तने तनहा अकेले उनके दरमियान कूद पड़े, हजारों से भिड़ गए, लड़े और लड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे और मुसलमानों के लिए दरवाजा खोल दिया और मुसलमानों ने खत्म नबुव्वत के डाकुओं को तहे तैग किया, उनके गलों को काट डाला, उनकी लाशों के अंबार लगाकर यह ऐलान किया कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। अगर कोई खत्म नबुव्वत पे डाका डालेगा तो नबी के सहाबा उसके साथ ये सलूक करेंगे। पर मेरी कौम, तुम खत्म नबुव्वत की अहमियत को ना पहचान सके। काश तुमने अपने असलाफ के कारनामों को याद रखा होता, काश तुमने सहाबा की इन कुर्बानियों को याद रखा होता तो तुम्हारी गंदी जुबानों से ये जुमले ना निकलते कि ये कादियानी यहूदियों से अच्छे हैं, नसारा से अच्छे हैं, अहले किताब की कैटेगरी में है। नहीं, अल्लाह की कसम, ये यहूदियों से बड़े काफिर है, ये ईसाइयों से बड़े काफिर है, ये इस्लाम के
उनसे बड़े दुश्मन हैं। ये इस्लाम के लिए दीमक है। इन्होंने तो आज तक ना आईने पाकिस्तान को तस्लीम किया, ना कानून पाकिस्तान को तस्लीम किया, ना उस फैसले को तस्लीम किया जिस फैसले के मुताबिक इन्हें कुफार करार दिया गया। ये अभी तक अपने आप को अहमदी मुस्लिम कहलाते हैं। ये अहमदी मुस्लिम नहीं, ये नॉन मुस्लिम हैं, ये मुर्तद हैं, ये कुफार हैं, ये इस्लाम से ऐसे निकले हुए हैं जिस तरह गूंदे हुए आटे से बाल निकल जाता है। खत्म नबुव्वत के अकीदे को समझिए, सहाबा की कुर्बानियों को सामने रखिए, अपने असलाफ की कुर्बानियों को सामने रखिए। इनके लिए नरम गोशा अपने दिलों में पैदा करने वाले मौलवियों, मैं तुम्हें अताउल्लाह शाह बुखारी का वो जुमला सुनाऊं जब उन्होंने कहा था कि अगर मैं उस वक्त होता मैं मिर्जे को कत्ल कर डालता। अदालत लगी, जज ने पूछा तुमने इतना सख्त जुमला क्यों कहा है कि मैं अगर होता तो मिर्जे को मार देता। कहा वो तो उस वक्त की बात थी, तुम अभी इस अदालत के अंदर नबूवत का ऐलान करके देख लो, तुम्हारी लाश को यहीं पे तड़पा ना दूं तो मेरा नाम अताउल्लाह शाह बुखारी ना रखना। एहसान इलाही ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह की कारनामों को अपने सामने रखो, किस तरह इस कादियानियत के कुफर को उन्होंने दुनिया के सामने नंगा किया। ये अहलुल हदीस उलमा हैं, ये तुम्हारे असलाफ हैं, ये तुम्हारे बड़े हैं। इन कादियानियों के शर को पहचानो, इनके शर को वादे करो, इनके कुफर पे खामोश ना रहो, इनके लिए नरम जज्बात दिलों में पैदा ना करो कि इनके बड़ों का एहतराम किया जाए, इनके साथ प्यार और मोहब्बत का सलूक किया जाए। ये आमना के लाल के दुश्मन हैं, अल्लाह की कसम ये मोहब्बत के काबिल नहीं दुश्मनी के काबिल हैं। और मुसलमान जब तक जिंदा रहेंगे खत्म नबुव्वत के इन डाकुओं को अपना दुश्मन समझते रहेंगे और इसी पर जिंदा रहेंगे। और मौत भी होगी तो खत्म नबुव्वत के अकीदे का दिफा करते हुए मौत होगी, और वो कितनी प्यारी मौत होगी जो मोहम्मद की इज्जत के दिफा में आ जाए। ऐ अल्लाह जब तक जिंदा रखना, अपने दीन का चौकीदार बना के रखना। ऐ अल्लाह जब मौत देना डाकुओं के हाथों इसी चौकीदारी करने के जुर्म में शहादत की मौत दे के अपने पास बुलाना। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। आपकी शान शौकतों से अलग दूसरी